Thank you very much. Today my lecture is based on exponent and the power. Basically, meaning of the exponent and power is the same. So once I say exponent, you understand power, power is vice versa. So first I am going to define about the exponent. What is the exponent? अब देखिए, an exponent indicates how many times. It is very times मतलब हमेशा multiplication में होता है. How many times a number. When I say number means it can be natural number, it can be whole number, it can be rational number, it can be fraction, it can be decimal. Known as a base multiplied by itself. अब देखिए, itself means यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि a is a natural number, it can be fraction, rational number, decimal, multiplied by n times. So a is base and one power is the exponent. But when it is multiplied, it is added. So it becomes a to the power n. So a is a base, n is a exponent or power. How it is read? It is read as a to the power or a to the exponent or a raised to the power or a raised to the exponent. That is the same thing. But that is important that a is a base, which I have given here, and exponent is the power. Here it is important. A can be any number which I have told you. That means there is a 3 parameter which is silent. 1 into power 1 and divisor is 1. It is not written, it is understood. अब देखिए, अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है. Here 2 is a natural number and 4 is a power. That means 2 is multiplied by 4 times. So इसको कह सकते हैं 2 raised to the power. Similarly here 3 by 4 is a fraction, but it is a base. 3 by 4 to the power 3. 3 by 4 multiplied by 3 times means 3 by 4 to the power 3. अब देखिए, अब यहाँ पर -2 ये आपका इन टीचर्स में आ जाता है और -2 becomes base. 3 is the exponent. So -2 is multiplied by 3 times. So it can be written as -2 raised to the power 3 and here 0 to the power 3. अब 0 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 रहेगा. These are the basic things students should understand if they want to go in engineering or higher classes in the basic science. अब यहाँ पर there is laws जो समझना बहुत जरूरी है. For my convenient I have made 7 laws, but you can remember all these things. अब देखिए, a upon b is a fraction to the power n. So it can be written as a to the power n divided by b to the power n. This is the first law. अब देखिए, or a by b can be multiplied by n times. Second law. अब a to the power m into a to the power n. Base is the same, power is different. So if base is same, power is different, the power should be added, but it should be written in a bracket. Generally, a student doesn't write, which is not correct. For same base, power is added. अब third law. Base is different, but power is the same. That means base, first base to the power n into second base to the power n. First, second base. For the same power, it is product of a and b to the same power. Fourth law. A to the power m upon a to the power n. That means if denominator goes into the numerator, sign of the power is changed and it should be written in the bracket m into n. Similarly, a to the power m is a base और अगर इसका पावर n है तो all power should be multiplied. Here, अब देखिएगा, a upon b to the power -n. But if fraction is reversed, then power is changed. अब देखिए यहाँ पर -1 to the power n. If n is even, this is positive. If n is odd, it is negative. अब साइंटिफिक यूज ऑफ द एक्सपोनेंट क्या है, अब जरा ध्यान लीजिएगा. वेरी लार्ज नंबर. अब जैसे कहा जाता है 6 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर, 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. अब ये लिखना बहुत लंबा हो जाता है जो है, तो ये लार्ज नंबर इसको बोलते हैं. एंड हाउ दिस लार्ज नंबर कैन बी रिटन इन शॉर्ट, इट इज ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग द बेस एंड पावर. अब देखिए,
इसी को बोलते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। वी नो दैट वेरी लार्ज नंबर लाइक डायमीटर ऑफ द अर्थ एज वेल एज द स्मॉल नंबर लाइक मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा टू एक्सप्रेस दिस पैरामीटर दिस नंबर एज ए साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए, अब वो कैसे किया जाता है, k इंटू 10 टू द पावर n, k शुड बी बिटवीन 1 and 10, it should not exceed 9, but you can put in decimal form and n can be any number where n is the integer from minus infinity to plus infinity। अब यहां पर देखिए, बहुत सिंपल चीज है। अब ये मैं बता चुका हूं, 5 बेस है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। ये -5/7 रेशनल नंबर है, इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए। यहाँ बेस एक्सपोनेंट लिख दिया गया है। फिर ये देखिए -1/6 टू द पावर 4, -3 टू द पावर 4। अब मैंने आपको बता चुका है कि माइनस अगर इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। ये इवन है तो पॉजिटिव हो गया। रेस्ट द सोल्यूशन, न्यूमरेटर शुड बी मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर, बट 1 टू द पावर 4 इज ऑलवेज 1। 1 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, 1 रहेगा, एंड रिजल्ट इज इन योर फ्रंट। सिमिलरली दिस, अब यहाँ पर आप देखिए इवन है तो प्लस हो गया, 1 टू द पावर 4 इतना, 4 को इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट यू कैन गेट इट। सिमिलरली आप देखिए -1 टू द पावर 111, 111 इज ए ऑड नंबर, तो रिजल्ट इसका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब ये देखिए क्या है, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा जो। यस, 176 इज द प्लस। या तो ऊपर को जोड़ दीजिए, बता दीजिए बिकॉज बेस इज द सेम। एनी वे बाय यूजिंग द लॉ यू कैन कंक्लूड इट। अब देखिए सिमिलरली ऑल दिस थिंग्स, अब देखिए एग्जांपल 4, एक्सप्रेस इनटू एक्सपोनेंट फॉर्म बाय डूइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहां पर जैसे मैंने कहा कि 1 डिजिट का टेबल सबको याद होना चाहिए, एटलीस्ट अप टू 10, और हायर है तो बहुत अच्छा है। अब 64/294, अब बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि 64 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बार आएगा आपका जो 2, तो 2 को 6 बार कर लीजिए, और 7 to 9 को 3 को मल्टीप्लाई करेगा आपका जो है 6 टाइम, तो ये आ जाएगा। तो 2 to the power 6 upon 2 3 to the power 6 क्या हो जाएगा, 2/3 to the power 6। Then how the prime factorization is a very simple thing. If a student know the factorization, meaning of prime factorization, we have factorization also done many ways. अब देखिए यहाँ पे केवल सिंप्लीफाई किया है by using all the law. 3/5 is the same base, power will be added. It should be bracket. अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप इनिशियली, और फिर यहाँ 1/5 आ गया। अब ये 0 हो गया, 0 का डोंट सॉल्व इनिशियली, 0 मीन्स दिस इज 1, एज वी नो 8 to the power 0 is equal to 1, -10 to the power 0 is equal to 1, ये ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन -10 to the power 0 is equal to -1, अगर ये ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाला ही चीज जो बेस होता है, अगर यहाँ माइनस जो ब्रैकेट के अंदर नहीं तो दिस इज नॉट द बेस, base is only 10, your base is -10. This is very very important for the students to know all these things. These are the basic things. अगर basic things नहीं पता तो इंजीनियरिंग में क्या एडमिशन होगा, नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर लीजिए। अब सिमिलरली दिस एग्जांपल दिया गया है। अब देखिए यहां पर दिया गया है 10 to the power 0 is equal to 1, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 का 1 हो जाएगा। अब -10 to the power 0 is equal to -1, तो -1 हमेशा जो है 1 से छोटा होता है, क्योंकि अगर आप इंटीजर्स पर जाएंगे तो 0 बीच में है, राइट हैंड साइड इंक्रीजिंग, लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से इसमें देखिए बेस सेम है, पावर आपने ऐड कर दिया, सॉल्व कर लिया सोल्यूशन। उसी तरह यहां पर भी ऐसे कर दिया। अब एग्जांपल 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए 3 to the power 4 इंटू -5 to the power 4, पावर सेम है, ध्यान रख लीजिएगा, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो -15x हो गया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, अब यहां देखिए, अब इसको सॉल्व करके ये आप कर दिए, तो -15x तो यहां दिया ही हुआ है, ये भी -15 हो गया, x हो गया। इफ बेस इज सेम तो पावर विल इक्वल, तो x इज इक्वल टू 4, जैसे यहाँ किया गया है। अब ये इसमें लॉ यूज किया गया है, यहाँ 2 to the power x इज इक्वल टू 16। अब 16 को बेसिक थिंग, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स हमारे 16 हो जाए, तो 2 to the power 4, तो 2 to the power 4 हो गया,
तो बेस सेम है तो x इक्वल टू 4. सिमिलरली यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स, नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन. देखिए, हमारे लेक्चर को सुनने के लिए हायर क्लासेस में हमारे प्रीवियस लेक्चर को ध्यान में देना होगा. ऑल दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 6. अब देखिए, लार्ज नंबर का ये देखिए आपका प्रॉब्लम है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंट फॉर्म. ये कह रहा है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको सिंप्लीफाई करना है, बेस और एक्सपोनेंट. जहां भी एक्सपोनेंट फॉर्म आएगा तो बेस आ जाएगा. अब देखिए, ये आपका आ गया इंटू 15 टू पावर 3 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये डिनोमिनेटर में आ गया, यहाँ तक क्लियर है. अब आपको यही नहीं पता कि 15 3 के टेबल में आता है, तो क्या करें, सॉल्व नहीं कर सकते हैं. अब लगेंगे डिवाइड करने 15 इंटू 15 15 इंटू करने. तो अब देखिए 15 को भी आप लिख सकते हैं 3 इंटू 5. अब यदि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ये आप अलग कर लीजिए. 3 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 3, 5 to the 3 और 5 कैंसिल हो गया, सिंपल. उसी तरह से आप इन सबों को भी मैंने आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब मैं बता रहा हूं आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जो मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो k इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखिए, वेयर द वैल्यू ऑफ k इज बिटवीन 0 एंड 10, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए 1. अब देखिए ये है, अब देखिए काउंट कर लीजिए. 11 शुड नॉट बी रिटन 11 इंटू, इट इज 1 पॉइंट. और उसके बाद काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 1.1 10.7 हुए. ये दिस इज ए शॉर्ट फॉर्म. शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ भी आप कह लीजिए, मैंने शॉर्ट फॉर्म यहां लिख रहा हूं. अब देखिए, अब इसी में देखिए 1.37 इज बिटवीन 0 एंड 9, 0 एंड 10. अब काउंट कर लीजिए 1 2 11 आ जाएगा जो. सिमिलरली दिस वन. अब देखिए, अब डेसिमल में देखिए, आप ये डेसिमल में नंबर नहीं है, ये आपका जो है लार्ज नंबर है, कंसिस्ट ऑफ मिनी डिजिट. तो यहां पर पावर जो काउंट किया जाता है, इसके बाद राइट हैंड साइड में काउंट किया जाता है. लेकिन डेसिमल में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में काउंट किया जाए, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. जैसे 14 है, 1.4 लिख लीजिए, 1.4, बट काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10, बिकॉज ये शॉर्ट हो जाए, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे. उसी तरह से सब लिखा जाएगा. तो इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपका जो होल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है, तो उसको जो 0 और 9 के बीच में लिख के राइट हैंड साइड में डिजिट्स काउंट करिए. डिजिट्स में बोल रहा हूं. और अगर डेसिमल में है तो पॉइंट के बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट्स काउंट करिए, और उतना ही -2 द पावर 4. ये बहुत सिंपल चीजें हैं. अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिया हूं जिसको आपको करना है. वेरी सिंपल वे इफ यू अंडरस्टूड द लॉज, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट. और ये नहीं समझेंगे तो हायर क्लासेस में कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन आपका जो है. और इसके लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि आप इसके लिए एक फ्रेश कॉपी तैयार करिए, और फर्स्ट क्लास से लेके जितने फार्मूला है. अब देखिए, लार्ज नंबर डिफाइन किया जाता है क्लास 3 में, 4 5 डिजिट को लार्ज नंबर कहा जाता है, 6 7 को 5th में किया जाता है, 8 डिजिट को 9th में किया जाता है. ये लार्ज नंबर है. अब यहाँ पर लार्ज नंबर कहा गया है और आपको यही नहीं पता कि 1 10 100 1000 लार्ज नंबर है, करेंगे क्या? नहीं कर सकते. थैंक यू वेरी मच.